اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 4، سورہ النساء، آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 اینڈ آیت نمبر 6، یعنی 5 اور 6۔ یہ دو آیات ہیں، ان کی پہلے تو تلاوت سنیے اور پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تجوید کے رولز بھی واضح کر دوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ یہاں پر ہماری آیت نمبر 6 یعنی 6 کا مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 5 پر یعنی 5 پر دوبارہ آئی ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، حمزہ ہے اس پہ تھوڑا جھٹکا دیں گے، تو السُّفَهَاءَ کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچیں گے، حمزہ کو نہیں، صرف ہا کو، اور اس ہا کی آواز سینے کی طرف جاتی ہے۔ ہا اموالکم التی، سب باریک لیٹر ہے، اموالکم التی جعل اللہ، جیم عین کو بیچ میں گلے سے پڑھنا ہے، ایک ایک حرکت، جعل اللہ، اس میں دیکھیے لام جو ہے اللہ کا نام ہے تو اس میں زبر ہے اس سے پہلے، تو اس لام اس میں جلالہ ہے تو لام موٹا ہوگا، لکم قیاما، قی قاف موٹا ہے، قیا، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، قیاما، اب یہ میم دو زبر من کی جو تنوین ہے اس کی وجہ سے آگے ادغام ہو رہا ہے، لیکن ادغام کا نام کیا ہے؟ ادغام ناقص، کیونکہ آگے واو ہے، کیا قیاما ورزقوہم، را موٹا، ورزقوہم، قاف بھی موٹا، دو حرکات کھینچے گا، فیہا باریک لیٹر ہیں دونوں، فا بھی دو حرکات کھینچے گا اور ہا بھی، فا کے ساتھ یا مدہ ہے اور ہا کے ساتھ الف مدہ ہے، دونوں دو حرکات کھینچتے ہیں۔ پھر دیکھیے ویکسوہم، کاف پہ جماؤ کے ساتھ گزرنا ہے، ویکسوہم، اور باریک لیٹر ہے سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ وقولو، قاف واو پیش، قو، دو حرکات کھینچے گا بھی اور موٹا پڑھے گا، لیکن پڑھا جائے گا، لیکن لو موٹا نہیں پڑھا جائے گا، وقولو، لو کو آپ نے پھر باریک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ لہم قولا معروفا، اب دیکھیے قو، یہ واوی لین ہے اور کاف موٹا بھی پڑھا جائے گا، پھر لام دو زبر لن کی جو تنوین ہے، آگے میم ہے مشدد، تو یہاں ادغام ہو رہا ہے، قولم، اب دیکھیں غنہ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا غنہ؟ اکمل، سب سے بڑا غنہ، آواز کو دیر تک ناک میں چھپانے کا نام غنہ ہے، جو زیادہ دیر تک چھپائی جاتی ہے اسے غنہ اکمل کہا جاتا ہے۔ اور ادغام کون سا ہے؟ ادغام تام بالغنہ، یعنی ایسا ادغام ہو رہا ہے جو مکمل غنے کے ساتھ،
वब्तलुल यतामा, वब बा पे कलकला हो रहा है, वब्तलुल यतामा, ता खड़ी जबर के साथ है और मीम भी खड़ी जबर के साथ है जो अलिफ के बराबर, यतामा, हत्ता, हत्ता को क्यों खींचा, क्योंकि इसके ऊपर खड़ी जबर भी है और उसके ऊपर देखिए मद भी है। अगर हम यहाँ पे वब्तलुल यतामा हत्ता, यहाँ पे अब हम यहाँ आरज़ी सुकून करते हैं, तो हम मद को नहीं खींचेंगे, फिर हम मद को कब खींचेंगे, जब हम दोबारा पढ़ेंगे, हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, ऐसे, ठीक है? बलगुन, गैन को आपने मोटा पढ़ना है और नून मुशद्दद है, बलगुन, यहाँ भी इदगाम ताम बिल गुन्ना, यानी ऐसा इदगाम जिसके अंदर भरपूर गुन्ना हो रहा है। क्यों गुन्ना हो रहा है? नून मुशद्दद है, शद के साथ है नून, इस वजह से। और ये कौन सा गुन्ना है? जो हमने पीछे मीम मुशद्दद पे भी किया था। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पर गुन्ना होता है बड़ा, कौन सा? अकमल, यानी कि देर तक आवाज को नाक में छुपाते हैं। आगे देखिए, हम यहाँ रुकते हैं, आरसी सुकून करते हैं, फिर उसके बाद फ़इन अनस्तुम, आनस्तुम, सॉरी, फ़इन आनस्तुम, फ़इन, देखिए नून साकिन की हमने पूरी आवाज की, नून साकिन के बाद क्योंकि हमजा आ रहा है, फ़इन, हमजा कौन सा? हरफ हल्की है। अब ये अलिफ के ऊपर जब खड़ी जबर है तो ये अलिफ अलिफ नहीं रहेगा, क्योंकि अलिफ जब किसी हरकत के साथ आ जाता है वो अलिफ नहीं रहता, वो हमजा हो जाता है। तो ये आनस्तुम, इसको हम पूरा फ़इन पूरा इज़हार के साथ पढ़ेंगे, ये कहलाता है इज़हार हल्की। फ़इन आनस्तुम, नी सीन को जमाओ के साथ, नस तुम मिनहुम, ये जो तुम है ना, तुम मिनहुम, ये भी इदगाम है, लेकिन ये शफवी है, मीम के कायदे लग रहे हैं यहाँ पे। मीम का कायदा लग रहा है कौन सा? इदगाम शफवी, और इसके अंदर भी गुन्ना हो रहा है बड़ा, कौन सा? अकमल, क्योंकि देखिए मीम के ऊपर आगे मुशद्दद है, मीम शद के साथ है। अनस अनस तुम मिनहुम, आवाज को देर तक नाक में छुपाना है, ये यहाँ पे लाजमी करना है। फिर मिनहुम, देखिए नून साकिन इसके अंदर है ना, मिन, लेकिन हमने इजहार किया पूरा, मिन होम, क्यों? आगे हा है, होम का हा है, और हा क्या है? हरफे हल्की है। जब नून साकिन के बाद हरफे हल्की आता है तो फिर इजहार हल्की हो जाता है। आगे देखिए, रुश, रुश, रा को मोटा पढ़ेंगे लेकिन शीन को जमाओ के साथ, रुश, दाऊं दाऊं, थोड़ा सा इख्फा हो रहा है तो थोड़ी सी आवाज नाक में जा रही, थोड़ी सी बाहर, रुश दाऊं, ठीक है? फा है ना आगे, इस वजह से इख्फा हो रहा है, इसको कहते हैं इख्फा हकीकी, और यहाँ पे गुन्ना होता है सेकंड लेवल का, उसको कहते हैं गुन्ना कामिला। तो जब भी इख्फा होता है याद रखिए कि वो इख्फा के साथ गुन्ना सेकंड लेवल का होता है, कामिला। रुश्दन, फद, फदफउ, दाल पे हमने कलकला किया, क्यों? क्योंकि दाल पे जज़म है, क्योंकि दाल उन हरफों में से है जो कुतुबिन जद्दिन के हैं। क़ाफ, तो, ब, जीम, दाल, ये 5 हुरूफ हैं कुतुबिन जद्दिन के। ये जहाँ कहीं भी होंगे, जज़म के साथ होंगे या सुकून के साथ, तो इन पर कलकला होगा। फद, फदफउ, हम आइन को गले से पढ़ेंगे, थोड़ा खींचेंगे, ऊपर मद है, ठीक है? फिर देखिए, इलैहिम, इलैहिम, हमज़ा ज़ेर ई, लाम या ज़बर लई, ये याई लीन है, इलैहिम, इसको इसको ध्यान से पढ़ना है आपने। इलैहिम, ये याई लीन है। याई लीन का पहचान आपको पता है ना, कि याई लीन जब खुद सुकून में हो और उससे पहले वाले लफ्ज़ पर ज़बर हो, ऐसी या को याई लीन कहते हैं, जिसकी आवाज़ उर्दू के लफ्ज़ कई और कई से मिलती है। और लीन किसको कहते हैं? आवाज़ का नरमी से मोड़ पैदा करना। अब देखिए, अ अ, इलैहिम में पूरा हमने इज़हार किया, क्योंकि हिम, फिर देखिए मीम साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है ना, पूरा इज़हार हल्की हुआ। अम्वालहुम, यहाँ भी इज़हार हल्की भी किया, और बारीक तरीके से सारे लेटर जो हैं ये बारीक लेटर हैं, ये हेवी लेटर नहीं है, लाइट लेटर है, इनको लाइट तरीके से और आपको बताऊँ कि दोबारा याद दिला दूँ कि बारीक लेटर पढ़ने के लिए आपका जो होंठ है वो साइड वाइज़ खींचेंगे तो आपके लेटर बारीक नहीं होंगे, आपका मुँह ऊपर-नीचे और बड़ा-सा नहीं खुलना चाहिए, ठीक है? वला, वला, अब देखिए ये भी बारीक है, तअकुलूहा, त, इसके ऊपर झटका क्यों दिया? क्योंकि उसके ऊपर जज़म है, तअकुलूहा, जज़म की वजह से वो हमज़ा की शक्ल इख्तियार कर जाता है ना, यानी वो हमज़ा पढ़ा जाएगा तो उसको हमज़ा का झटका देके
कुलूहा, लू को 2 हरकत खींचेंगे, वाव मद्दा है, और हा को खींचेंगे, उसके ऊपर हा 2 मद्दा, उसके ऊपर अलिफ मद्दा भी है, और साथ में दूसरी वाली ऊपर देखिए मद भी है, तकुलूहा, ठीक है? इसरॉफं, इसरॉ, इस को बारीक, रॉ को मोटा, इसरॉ, फं, अब यहाँ इदगाम हो रहा है, कौन सा? इदगाम नाकिस, इदगाम नाकिस, इसरॉफं, फं, ठीक है? वबिदारन, बिदारन, यहाँ पर इजहार हो रहा है, रा दो जबर रन की तनवीन है, फिर आगे हमजा है, अलिफ को हमजा की शक्ल बन गई ना, उस पे जबर लग गया, इसलिए यहाँ पूरा इजहार हुआ, बिदारन, पूरा इजहार हुआ, रन कहीं आवाज नाक में नहीं गई, इजहार कौन सा हुआ? इजहार हल्की, क्यों? क्योंकि हमजा हरफे हल्की है। ऐ यकबरू, यहाँ भी इदगाम हो रहा है, कौन सा? इदगाम नाकिस, जब भी वाव और या मुशद्दद आ जाते हैं तो इदगाम नाकिस होता है। ऐ यकबरू, वमन, व, अब देखिए वमन काना, अब इसमें देखिए नून साकिन के बाद काफ है, यहाँ इख्फा होगा, वमन काना, का को एक अलिफ की वजह से 2 हरकत खींचेंगे, ना को नहीं खींचेंगे, उसको एक हरकत पढ़ा जाएगा क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ जबर है। वमन, यहाँ इख्फा हो रहा है, यहाँ गुन्ना भी है कामिला, सेकंड लेवल का छोटा गुन्ना, वमन काना गनिय्यन, गनी, ग़ा को मोटा पढ़ेंगे, ग़ाइन हमेशा मोटा पढ़ा जाता है क्योंकि वो खुशा-दिन की फैमिली से है, 7 मोटे हुरूफ में से है, 7 हेवी लेटर्स में से है। गनी, अब यहाँ पे तशदीद है, नी, या, यहाँ पे हमने अ, थोड़ा इख्फा किया और सेकंड लेवल का गुन्ना किया, गनी, या, थोड़ी आवाज को नाक में छुपाया, फल यस्तअफिफ, फल यस्तअफिफ, तमाम बारीक लेटर हैं जो बहुत ध्यान से समझ के पढ़ने हैं। फल यस्तअफिफ, सब जमाओं के साथ पढ़ने, जो इसके अंदर हरकत जिन पर नहीं है, जैसे लाम पे हरकत नहीं है, फिर सीन पे हरकत नहीं है, फिर आइन पे नहीं है, फल यस्तअफिफ, इस तरीके से, ठीक है? आगे देखिए इसी तरीके से हमने जैसे व काना, इस पे इख्फा हकीकी गुन्ना कामिला। अब देखिए फकीर, कॉफ मोटा, फकी 2 हरकत खींचेगा कॉफ क्योंकि उसके साथ या मद्दा है, और आगे क्या हो रहा है? रा 2 जबर रन की तनवीन है, उसके बाद फा है, इख्फा होगा और गुन्ना कौन सा होगा? कामिला, फकीर, फल फलयकुल, अब देखिए यहाँ पे या के साथ ऊपर तशदीद, वो सॉरी जज़म है ना, तो ये या कुल यहाँ झटके से पढ़ा जाएगा, ये हमजा तसव्वुर किया जाएगा, फल फलयकुल बिल मअरूफ, आइन को देखिए, बिल मअरूफ, रा जो है और मोटा भी पढ़ा जाएगा, 2 हरकत खींचा भी जाएगा, और आइन को जमाओं के साथ फा पे हम रुक जाएंगे, तो यहाँ आरजी सुकून होगा, तो फा की जेर को हम नहीं पढ़ेंगे। जब हम किसी हर्फ पर रुकते हैं, आरजी सुकून करते हैं, तो उसकी जो लास्ट हरका होती है उसको हम नहीं पढ़ते। हरकत क्या होती है? ये जेर जबर पेश, ये हरकत सलासा होती है ना, तीनों सलासा कहते हैं 3 को, तो इस वजह से ये जेर जबर पेश जो है ये है हरकत। तो फ़इज़ा, फ़इज़ा, ठीक है? दफ़अतुम, दफ़अतुम, फ़ा ऐन ज़बर फ़अ, दफ़अ, ऐन को जमाओं के साथ पढ़ना है, दफ़अ, और आपके गले में ऐन की आवाज़ आनी चाहिए, इस ऐन को अलिफ की तरह नहीं पढ़ना। दफ़अतुम, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये तुम जो हुआ है इज़हार हुआ है क्योंकि आगे देखिए हमज़ा है। फिर देखिए अलिफ के नीचे चूंकि जेर है तो ये हमजा पढ़ा जाएगा, अलिफ अगर खाली होगा, कुछ भी उस पर हरकत ऊपर नीचे नहीं होगी, सिर्फ वो अलिफ पढ़ा जाएगा, ठीक है? बाकी सब अगर हरकत के साथ अलिफ होगा वो हमजा पढ़ा जाएगा। ई, लई, हिम, लई, देखिए याई लीन को करना लई, लई हिम, पूरे इजहार के साथ हुआ क्योंकि आगे फिर हमजा आ गया। अम वालहुम, अम वालहुम, सब बारीक पढ़ा जाएगा। फअशहिदू, फअश, देखिए शीन की आवाज में इस तरह की आवाज होती है ना, फअशहिदू, जमाओ के साथ पढ़ना है, शीन जो है जज़म के साथ है, और दो जो है 2 हरकत खींचेगा क्योंकि इसके साथ वाव मद्दा है। मद्दा के हुरूफ 3 हैं, कौन-कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। देखिए अलिफ मद्दा के भी 2 हरकत खींचेगा, वाव मद्दा भी और या मद्दा भी। इनको आप याद रखिए। इसी तरह याई लीन
और वाविलीन भी मद्दा के हरूफ हैं, इनको भी आपने 2 हरकत ही खींचना है। अब देखिए आगे आगे अलैहिम, अलैहिम, लई, अलैहिम, ये याइलीन के साथ है, ये भी 2 हरकत खींचेगा। अलई आइन को आप गले से पढ़ेंगे, इसको अलैहिम अलिफ की तरह नहीं, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। कीजिए आइन को इसके मखरज पे जाके बोलिए, अलई, अलैहिम, ठीक है? वकफ़ा, वकफ़ा, देखिए सब बारीक है, इसमें बड़ा सा मुँह नहीं खोलना, वकफ़ा ऐसे नहीं करना। अल्फा आपकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि आप उसको मोटा पढ़ी या बारीक। जितने मोटे हरूफ हैं, वो 7 हरूफ हैं, 7 हरूफ हैं। खुस्सा, दिक्तिन, किज़, ये इनकी एक मखसूस ट्रम है, इसमें से आप स्पेलिंगें चुन लें। जो हैं कलकले वाली वो 5 हैं, कुतुबिन जद्दिन, उसके अलावा ये जो हम बारीक हरूफ आपको बताते हैं ना, मोटे हरूफ बारीक 7 मोटे हैं, बाकी 3 कंडीशनल हैं, अलिफ, लाम और रा, और बाकी तमाम बारीक हरूफ हैं, इसलिए उनको हमेशा बारीक तरीके से पढ़िए। बारीक तरीके से पढ़ने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता देती हूँ। आपका मुँह ऊपर नीचे और बड़ा सा मुँह नहीं खुले, साइड वाइज़ आपके होंठ खींचेंगे तो आपके बारीक हरूफ कभी भी मोटे नहीं होंगे। अब देखिए फ़ा को हमने ऊपर खड़ी ज़बर है, 2 हरकत खींचा, वकफ़ा बिल्लाहि, बिल्लाहि, बारीक तरीके से पढ़ना है क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। बिल्लाहि, अब देखिए हसीबा, हसीबा, ये हा के स जो गले से होता है, हरफ़े हल्की है, ठीक है? और इसमें हा, हा, अब देखिए इसमें साँस चलती हुई महसूस होती है। ह, सीबा, सीन सीन बारीक है, हा भी बारीक है, सब बा 2 ज़बर बन की ये तनवीन है, लेकिन हम यहाँ रुकते हैं, ये मद्दे इवद कहलाती है। जब हम रुकते हैं तो ये एक अलिफ और एक ज़बर के साथ पढ़ी जाती है। एक अलिफ तक खींचा जाता है और एक ज़बर के साथ 2 ज़बर हसीबन नहीं पढ़ेंगे, हसीबा, ठीक है? इतना हम यहाँ पर हमारी आयत नंबर 6 कंप्लीट होती है। इसी के साथ यहाँ वाला लेसन कंप्लीट करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।